পরিবর্তন আছে ও পরিবর্তন সবাই জন্য নেসেসারি আছে ও সবাই পার্টিকে একটু অবসর দেওয়া দরকার আছে। আগে আপনি দু জোড়া ফুল আপনি দেখে নিয়েছেন, একটা কমলা ফুল একটু দরকার আছে, ওটা भी দেখুন 2026 থেকে। যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য রাজনীতি যখন স্যার নিয়ে তোলপাড়, যখন সারা রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে যে বাবরি মসজিদ নিয়ে তৃণমূলের কোনো বিধায়ক যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, কি মনে করছেন আজকে? এটা আমি বলবো এরকম পলিটিক্স করা উচিত নাই, ঠিক আছে? এটা সবই মানুষের সেন্টিমেন্ট থাকে যে আগে হয়ে গেছে, ওটা কোর্ট ইন্টারফেয়ার করে সবাই জানেছে কিরকম একটু ওয়ার্স থেকে তারপরে ওরকম অর্ডার আসলো, আর ওটা সেটেল হয়ে যাচ্ছে। তো এখন কিছু গ্রিভান্স নেই, আবার ওটাই কথা নিয়ে আবার ওটা একটু পলিটিক্যাল মেনজের জন্য পোলারাইজেশন করতে জন্য এরকম করা ঠিক নেই, এটা উচিত নেই। বাকি ঠিক আছে, মানুষের ওনার টাকা আছে, ওনার কিছু করতে চাই, কিছু কনস্ট্রাকশন করতে চাই, তো কোর্ট আগে তো অলরেডি বলে দিয়েছে ভাই কি নিজে কনস্ট্রাকশন করে তো কি অসুবিধা আছে। যেভাবে স্যার নিয়ে একটা রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গেছে, অনেক মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, সব থেকে বেশি ক্ষোভ আপনার মতুয়াদের ওপরে পড়েছে। যেভাবে যে বিরোধী দলনেতা বলছেন যে যদি 50% স্যার যদি বাংলাতে যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে 2026-এ তৃণমূল সরকার থাকবে না, কি বলবেন আপনি? এরকম নেই, এটা তো বললে মানে হয়ে যাবে কি ভাই তৃণমূল সরকার এলি থাকছে কি প্রপারলি আগে স্যার করার উচিত উচিত ছিল। কিন্তু ঠিক আছে স্যার আছে, একটু প্রপারলি আপনাকে ডেটা মেনটেন করতে হবে, যে হচ্ছে ডেটা আছে আপনি জানেন কি অনেকগুলো দুদিন থেকে দু ডিস্ট্রিক্ট থেকে ভোট করছে না, দুটো ভোটার আইডি আছে, অনেকগুলো লোক মারা গেছে তারপরে ভোট হচ্ছে না, সব তো করা উচিত, এটা তো ঠিক করতেই হবে। এসআইআর তো ভাই নেসেসারি আছে, এটা তো ওরকম নেই কি कोई ব্যক্তি বিশেষকে একটু টার্গেট করা যাচ্ছে না, এটা তো সবাই নিয়ে যে সব তো ইকুয়াল আছে সবাই জন্য। टीएमसी वाले तो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन जैसा काम चल रही है। देखिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन की तरह काम करेगी, किसकी तरह काम करे, काम अच्छा ही कर रहा है, काम खराब तो नहीं कर रहा है। आज की डेट में अगर किसी का मृत्यु हो गया कोई ऐसा नहीं है और उसका भी वोट अगर रेगुलर कहीं ना कहीं कोई डाल रहा है, कोई भी करे, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईआर आपका यहाँ हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में भी तो एसआईआर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की ही सरकार है। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय को टारगेट करके नहीं हो रहा है। आज आप बोलेंगे जनगणना हो रहा है, तो जनगणना में आप टारगेट करेंगे क्या कि किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय के लिए जनगणना और ये नहीं हो रहा है। ये भाई एक डेटा है जो सरकार के पास हमेशा रहना एक उचित है, और आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है कि भाई आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि हमारे आपके जो है इमेजिनेशन के बहुत दूर है वो सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को कवर अप करना और एक डेटा जो है पूरा प्रॉपरली जो है बना के प्रिपेयर्ड करना, इट्स नॉट सो इजी। इनफैक्ट इन इंडिया मतलब वी आर जस्ट क्रॉसिंग द 150 बिलियन। কি মনে করছেন বিহারে যে প্রসেসটা হয়েছিল 2 বছর ধরে, একটা লংদি প্রসেস, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 1 মাসের ভেতরে এটা কি করা সম্ভব? এটা আমি এগ্রি করবো আপনার সঙ্গে কি ভাই ঠিক আছে একটু টাইম কম দিয়েছে, কিন্তু আমি জানি কি বাংলাতে যে এখানে যে মানুষ আছে ওনার খুব এনার্জি, খুব ভালো এনার্জি আছে, আর ও নিশ্চয়ই করতে পারবেন, 1 মাসের মধ্যে করে দেবে। राहुल गांधी जी बोल रहे बीजेपी बहुत चोरी चल रहा है, संसद में भी यहाँ तक की बोल रहे जल्ला फाड़ के। देखिए अब उनको लग रहा है, अब वोट कैसे चोरी होता है वो बता तो दे। यहाँ तो वोट शो है, कहीं पे है नहीं कि हवा में उड़ रहा है या किसी के पॉकेट में पड़ा है आप चोरी करके चले जाएंगे। राहुल गांधी जी को मुद्दा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और वो अपने खुद भी मुद्दे से भटक जाते हैं। तो उनको आज के समय पे जो है उन्होंने जो शुरुआत के जो मुद्दा लिया था, उनका मुद्दा हमेशा जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए गरीबी के बारे में, आपको देखना चाहिए शिक्षा के बारे में, आपको देखना पड़ना चाहिए चिकित्सा के बारे में। एक आम आदमी को जो ज़रूरत है, इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है,
और इन्हीं तीन के पीछे पूरा समुदाय जो है परेशान है। राहुल गांधी जी खुद जानते हैं, इनकी पार्टी भी सक्षम, अगर आपको आप इन तीन चीज़ों पे तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों चीज़ें सही है, लेकिन फिर भी आपको गरीब आज रास्ते में टहलते हुए दिख रहा है ना। हम जो है, हम किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आम नागरिक की। तो ऐसा आज पिछले 70-75 सालों में ऐसी स्थिति रही कि आपको हर जगह जो है गरीब सामने देखते हैं, लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसा किस लिए है? पिछले ठीक है 10 सालों से 15 सालों से एक पार्टी प्रयास कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि 10-15 साल में ही पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन काफ़ी हद तक देखा गया है कि जो एक जो है बिलो जो है पॉवर्टी लाइन लोग रहे हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल लास्ट जो है 10 ईयर्स में जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उठा है। तो हम लोग चेष्टा करेंगे, राहुल जी को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, इनको सरकार के साथ कदम से कदम मिला के एक समाज सेवा के भाव से उतरना पड़ेगा कि जिससे जो है जनता का भला हो। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বঙ্কিম দা বলে সম্বোধন করেছে, এই নিয়ে সারা জায়গায় চর্চা হচ্ছে, কি বলবেন আপনি? আমি কমেंट मतलब आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं हाई कोर्ट क्लब में फेयर इलेक्शन हुआ इसलिए हम लोग जीते, तो क्या आने वाला इलेक्शन में कैसा लगता है, फेयर इलेक्शन हो जाए? नहीं ठीक है, हाई कोर्ट क्लब में इलेक्शन जो है फेयर ही होता है, आगे भी फेयर ही इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन फेयर ही हो रहा है। अब स्टेट लेवल पे जो है, यहाँ पे तो हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाएगा या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ एडवोकेट है और एडवोकेट हमेशा जागरूक रहा है, तो अपने सामने इस तरीके की कोई भी चीज़ होने नहीं देगा। अब रही स्टेट की सिलेक्शन की बात है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता है कि कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे जो है कहीं कार्यकर्ता है या नहीं है। कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से कई बार देखा गया है कि उस बूथ पे जो अगर इग्नोर हो रहा है तो वहाँ से वोट परसेंटेज लोगों के कम हुए हैं, प्रत्याशियों के कम हुए हैं। अच्छा सर, जो हाई कोर्ट क्लब में आप लोग आए हैं तो कुछ नया देखने मिले या क्या क्या नया हो जाए? निश्चय ही जो है बहुत अच्छी टीम आ रही है और पूरा जो है टीम मिल के प्रयास करेगा, और हम ये बोल दें कि ये प्रयास सिर्फ हमारी टीम का नहीं रहेगा। आज के समय हाई कोर्ट क्लब के जितने भी मेंबर हैं, वो मेंबर खुद बढ़ के सामने आ रहे हैं काम करने के लिए। और मैंने इलेक्शन के पहले भी सबको बोला था कि जो जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है वो पहले ग्राउंड में आए और काम करके दिखाए 2 साल, उसके बाद इलेक्शन में कंटेस्ट करे, तो काम अच्छा ही होगा। आप एकदम बेफिक्र रहिए। আচ্ছা, আপনি একজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, এই অনুযায়ী মানুষ এখনো পর্যন্ত স্যারের ফর্ম ফিল আপ করতে পারছে না, ভয় পাচ্ছে এবং অনেকে করছেও না, তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? আমি সত্যি কথা বলবো, আমি আমার ওরকম নলেজ নেই, এসআইআর আর এসব নিয়ে ওর তো আমি উৎসুকও নেই, ঠিক আছে। তো আপনি বলবেন একটু আমার নলেজ কম আছে, সেই জন্য আমি কিছু কমেন্ট করতে পারবো না এই বিষয়ে। আমাকে কমেন্ট করতে জন্য আমাকে অধ্যয়ন করতে হবে, রিসার্চ করতে হবে। আপনি বলবেন ঠিক আছে 2 দিন পরে আপনি আসবেন, তো আমাকে 1-2 दिन দেবেন, তো আমি রিসার্চ করে আপনার সাথে কথা বলবো। अच्छा, 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, जी। तो आप लोग कैसे फील कर रहे हैं या कैसा उत्साह है आप लोग का? नहीं ठीक है, जनता का हमेशा उत्साह रहता है, हर आदमी जो है मोदी जी से मिलना चाहता ही है, उनका दर्शन करना ही चाहता है। उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। अपोजिशन के लोगों के भले वो कोई भी स्टेटमेंट दे, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है आपके 100% जो है पॉपुलेशन, 100% लोग जो है जनता देती है कि मोदी जी बहुत ही कर्मठी व्यक्ति हैं, ठीक है, और उस व्यक्तित्व में वो पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटा जो है देश की उन्नति, विकास, प्रयास के लिए वो पूरा एकदम लगे हुए हैं। हम लोग को भी देख के लगता है कि इतना मेहनत, कई बार लोगों ने भी क्वेश्चन उनसे किया कि आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इतनी मेहनत आप कैसे कर ले रहे हैं। तो भाई जो भी चीज़ है वो निश्चय ही वो इसके जो है काबिल है, और उनको आना है सबके लिए। लोग जो है अभी हम लोग चूँकि आप बोलेंगे सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में जो है हम लोग कर्म में जो है ईश्वर का रूप हम लोग मानते हैं। तो
कोई भी जो अच्छा कर रहा है तो ईश्वर के रूप ही मान के जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जो है सनातन धर्म के प्रति जो लोगों का लगाव है तो वो लोग निश्चय ही जो है मोदी जी का दर्शन जो है करना चाहेंगे। थैंक यू सर।